ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 199 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ 29 ਸਵੇਰੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 28 ਤੋਂ ਫਿਰ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। देखो ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟ ਇੱਕ ਸੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਅ ਪਰਫॉर्मिंग ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫॉर द फादर ਟੂ ਲਾਂਚ ਦ ਮੂਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ, ਜਾਗृति ਲਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं महसूस करता है कि ये ऐसे सोच शायद हिंदुस्तान लिए ऐसी ज़रूरी है कि सोसाइटी एवोल्यूशन ज़रूरी है लेकिन रेवोल्यूशन ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे मूवियाँ या ऐसे मैसेज नहीं बननगे तो साडी जनरेशन को पता भी नहीं लगेगा कि किहड़े मुद्दे ने जिहड़े साडी सोच भी है नहीं। देखिए, बजट का अभी इन बिटवीन द लाइंस तो शायद समय लगेगा, 15-20 दिन आप जब पूरा उसको देखोगे इन बिटवीन द लाइंस क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं, जो सिंप्लीफिकेशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या डीक्रिमिनलाइजेशन है, वो चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ स्टेटस को है, मैं समझता हूँ ये बजट और रेवोल्यूशनरी और बोल्ड और डिसाइसिव हो सकता था, कीपिंग इन व्यू दी ग्लोबल सिनेरियो। लेकिन एक चीज़ चाहूँगा कि शायद पंजाब को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और पंजाब को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद में शायद बजट पूरा नहीं उतरा। आपको लगता है पंजाब जिस त्रासदी से गुजर रहा था, जो त्रासदी पंजाब ने झेली है पिछले दिनों में, उसको उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस बजट को एक दिशा दी जा सकती थी ताकि पंजाब भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। पंजाब को कुछ बड़ी राहत देने का ऐलान बजट के माध्यम से किया जा सकता था और PM का विजिट भी था तो कुछ बड़ा किया जा सकता था पंजाब के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब की जितनी भी बुद्धिजीवी या राजनीतिक, उनको ये सोच रखनी चाहिए और इकट्ठे होकर पंजाब के हित में, बॉर्डर स्टेट है, एंटरप्राइजिंग स्टेट है, यूथ और एंटरप्रेन्योरल स्टेट है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, मॉडर्नाइजेशन में हो। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो IT के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है उसको किस तरीके से पंजाब अपने हित में यूज़ करता है। IT की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं समझता हूँ पंजाब मस्ट एक्सप्लोर दोज पॉसिबिलिटीज़। और दूसरी जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के लिए जो बॉन्ड या बाकी स्कीमें हैं, उसको पंजाब अपने आप को कैसे, हाउ वी मेक आर लोकल बॉडीज़ एंड हाउ वी मेक आर सिटीज़ मोर प्रॉस्परस, मोर लिवेबल। तीसरी बात जो ड्रिंकिंग वाटर की है, उसके लिए
how we can plead our case to the government of India that how that can be done. Yes, दो तीन चीज़ें हैं, commercialization of education and also affordable health is very very important for the country as a whole. एक ग्रीन गैस और ग्रीन फ्यूल ऑलमोस्ट ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया है पंजाब में, उसका क्या आप देखते हैं? आप इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है कि ग्रीन एनर्जी में पंजाब भी अपना योगदान दे पाएगा? इसमें कोई मार्केट है उसके लिए? पंजाब कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन हमारी जो एक लैंडलॉक्ड है और हमारा जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया इज़ वेरी लेस, और हमारे पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आप किस तरह से देखते हैं इसको? अगर राजनेता के तौर पे ना देखें, सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे आप देख रहे हैं बजट को, तो कितने मार्क्स देंगे 10 में से? क्या बोलेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस दौर में दुनिया गुजर रही है, तो वी कुड हैव बीन मोर एंटरप्रेन्योरल एंड मोर अग्रेसिव इन आर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़। देखो, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ? मैं कहांगा कि शायद अगर शबाना आज़मी तो बाद या दीप्ति नवल तो बाद किसी ने कोई आर्ट मूवी च काम किया है और आर्ट एक सो रियलिस्टिक की है, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर अ परफॉर्मिंग एंड वेरी अमेजिंग फॉर द फादर टू लॉन्च द मूवी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ? देखो, जागृति लानी बहुत ज़रूरी है। मैं महसूस करता हूँ कि ये ऐसे सोच शायद हिंदुस्तान लिए इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी एवोल्यूशन ज़रूरी है, लेकिन रेवोल्यूशन ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे मूवियाँ या ऐसे मैसेज नहीं बननगे तो साडी जनरेशन को पता भी नहीं लगेगा कि किहड़े मुद्दे ने जिहड़े साडी सोच भी है नहीं। देखिए, बजट का अभी इन बिटवीन द लाइंस तो शायद समय लगेगा, 15-20 दिन आप जब पूरा उसको देखोगे इन बिटवीन द लाइंस क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं, जो सिंप्लीफिकेशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या डीक्रिमिनलाइजेशन है, वो चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ स्टेटस को है, मैं समझता हूँ ये बजट और रेवोल्यूशनरी और बोल्ड और डिसाइसिव हो सकता था, कीपिंग इन व्यू दी ग्लोबल सिनेरियो। लेकिन एक चीज़ चाहूँगा कि शायद पंजाब को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और पंजाब को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद में शायद बजट पूरा नहीं उतरा। आपको लगता है पंजाब जिस त्रासदी से गुजर रहा था, जो त्रासदी पंजाब ने झेली है पिछले दिनों में, उसको उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस बजट को एक दिशा दी जा सकती थी ताकि पंजाब भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। पंजाब को कुछ बड़ी राहत देने का ऐलान बजट के माध्यम से किया जा सकता था, और पीएम का विजिट भी था, तो कुछ बड़ा किया जा सकता था पंजाब के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब की जितनी भी बुद्धिजीवी या राजनीतिक, उनको ये सोच रखनी चाहिए और इकट्ठे होकर पंजाब के हित में, बॉर्डर स्टेट है, एंटरप्राइजिंग स्टेट है, यूथ और एंटरप्रेन्योरल स्टेट है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, मॉडर्नाइजेशन में हो। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आईटी के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है, उसको किस तरीके से पंजाब अपने हित में यूज़ करता है। आईटी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं समझता हूँ पंजाब मस्ट एक्सप्लोर दोज पॉसिबिलिटीज़। और दूसरी जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के लिए जो बॉन्ड या बाकी स्कीमें हैं, उसको पंजाब अपने आप को कैसे, हाउ वी मेक आर लोकल बॉडीज़ एंड हाउ वी मेक आर सिटीज़ मोर प्रॉस्परस, मोर लिवेबल। तीसरी बात जो ड्रिंकिंग वाटर की है, उसके लिए हाउ वी कैन प्लीड आर केस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हाउ दैट कैन बी डन। येस, दो तीन चीज़ें हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो अफोर्डेबल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज ए होल। एक ग्रीन गैस और ग्रीन फ्यूल ऑलमोस्ट ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया है पंजाब में, उसका क्या आप देखते हैं? आप इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है कि ग्रीन एनर्जी में पंजाब भी अपना योगदान दे पाएगा? इसमें कोई मार्केट है उसके लिए? पंजाब
कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन हमारी जो एक लैंडलॉक्ड है और हमारा जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया इज़ वेरी लेस, और हमारे पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप किस तरह से देखते हैं इसको? अगर राजनेता के तौर पे ना देखें, सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे आप देख रहे हैं बजट को, तो कितने मार्क्स देंगे 10 में से, क्या बोलेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस दौर में दुनिया गुजर रही है, तो वी कुड हैव बीन मोर एंटरप्रेन्योरल एंड मोर अग्रेसिव इन आवर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़।